Therefore, we have to keep on guessing, because modern time history is important. So how back he was there? So some say 4,000, but latest research says he was 10,000 years earlier, but that doesn't matter. Knowledge is eternal actually. But one thing is special about Patanjali is, which makes him stand apart from all other masters, is he systematized the knowledge of yoga, which is very difficult, because system, organization is from left brain. And poetry, music is from right brain. And when you touch a vast expansion, you can't express it in a prose form. You burst into poetry, because the experience is so mystic. Forget the peak experience, even simple experience. I am loved by my friend, my girlfriend, my boyfriend. Why people burst into poetry? Because it's a wonderful feeling you can't express. In Hindi we have a nice song, Sirf ehsaas hai ye, रूह से महसूस करो. You have to feel it from heart. It's just a feeling, you can't express. How you can express pure, deep, intense love? In fact, if you express, it becomes very shallow. You know, a husband comes with a bouquet of flowers on their anniversary. He has forgotten, but suddenly he remembers. So he rushes home in the evening with bouquet of flowers. My darling, I love you so much, I can't tell you. And wife looks into his eyes and she knows what he is. So you may use all the flowery language with all the flowers. And on the contrary, many people, there was a very funny survey by Reader's Digest. Which city in India is more, which is most rude city? Like that, there are some parameters. So people in Bombay are very rude. Why? Because they don't say thank you. Now the thing is, our culture is totally different. You have done such a great service to me, I just say thank you and everything is over. Formal, one word. Or I have done a great harm to you and I just say sorry, it's over. But you do something great and I just smile at you. That non-verbal communication is much more valuable. So a husband just smiles at his wife and love flows. He need not express any words. She understands how he loves me very much. So if that is true for simple love, when somebody touches vast expansion, how to express it? A great master went into very deep silence. So his disciples told, Master, you have been in silence for 3 days. We would like to know how you felt. Please share with us. He tried to avoid, but they insisted. So he comes out of his chamber. The first statement is, the truth is now corrupted. Because what he experienced was beyond Vijnanamaya Kosha, beyond words. And if I have to convey to you, I have to come down at your level. In Prashanti Kutiram, we give instructions in Shavasana. Relax totally, vast expansion, merge, go deeper and deeper. People are in deep silence. Then the instructor says, now chant one Om. Then many people afterwards come, why you unnecessarily brought us up? We are in deep silence. Now again chant Om. Then he used to say, other people will go to sleep. So to wake them up, I have to say chant Om. So when we are in deep silence, you don't want to speak any single word. But if I have to speak, if I have to narrate my experience, then I have to come down at Vijnanamaya Kosha, words level, knowledge level. So he says the truth is now corrupted.
So therefore, all the great masters, when they touched deep silence, they expressed in poetic form or mystic form. All the ancient scriptures of all the languages, they are either in poetic form or mystic form. Because whatever is conveyed is not sufficient. How, sir, I can tell you about one particular part of our country, Coorg, nice place. Oh, there are wonderful mountains and trees. Unless you go, my description is not complete. I may show you in video nowadays. But that fragrance and that feeling, unless we go there. So all the attempts of great masters to convey to you that vast experience is incomplete. Like child. Child's vocabulary is very limited. All the mothers know that, but they understand the child. Small child who has not yet developed language, when he is hungry also he will say ma. When he is very happy also he will say ma. When he is excited also say ma, but mother understands. What is the difference between this ma and that ma? But he has very limited vocabulary. So how shall we go on talking about scriptures unless we feel ourselves difficult? So all the great Gita, Bhagavad Gita, Bhagavad is divine experience. Gita is song, the divine song. The experience so wonderful, you have to put in poetry. But Patanjali resisted that temptation of putting in poetry. He used left brain also. A great master should have two qualities. Shrotriya cha akamahata. He should be a scholar as well as master. Many people are scholars. They will write wonderful books, give nice lectures, but their personal life will be chaotic. What they are preaching, they will not practice. They are scholars. There will be great masters who go into deep silence, but they can't convey it to others. But a really great master is who has touched that, plus he knows how to convey it. So that he comes down to your level, so that you understand. So Patanjali is unique in that way that he didn't use poetry. He made it systematic. That's why yoga is a systematic, scientific process of self-unfoldment. Patanjali is helping us to find out what we are eventually. Somebody asked the great artist Michelangelo, he used to carve wonderful statues also. How you create such a beautiful statue out of a stone? Then Michelangelo smiles. He says, I don't create anything. In each and every piece of stone, statue is already there. I only chisel off unnecessary parts. In fact, when a sculptor looks at a stone, he does not see stone. He sees the statue hidden. ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं च वरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन प्रिय मोहन जी, व्याख्यान माला का यह
40वां पुष्प आज हम सब लोग मिलकर यहाँ पर इसके माध्यम से पतंजलि योग दर्शन का कुछ महत्वपूर्ण भाग जानने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने पतंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का अर्थात साधन पाद का थोड़ा सा यहाँ पर शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। हम साधना पाद बोल जाते हैं, तो मूल शास्त्र में यह साधन पाद होता है, न कि साधना पाद। सामान्यतः हम साधना करते हैं इस रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम साधना पाद ऐसा शब्द लगाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक प्रयोग करने से अच्छा रहेगा, हम शास्त्र से अधिक नजदीक से जुड़े रहेंगे। तो साधन पाद, जैसे योग को योगा कहने का एक अभी प्रचलन सा हो गया है, वैसे साधन पाद को भी साधना पाद बोलने का प्रचलन सा हो रखा है। कभी कभी अनावधान से ऐसा उच्चारण हो सकता है, लेकिन मूलतः यह साधन पाद। तो कल हम लोगों ने 26वां सूत्र देखा था, जिसमें विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः, वह जो हान की स्थिति है अर्थात मोक्ष की, आनंद की, या समाधि की अत्युच्च अवस्था, या असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था, वह प्राप्त होना अर्थात हान स्थिति प्राप्त होना, उसका क्या उपाय है, यह हमने मोटा मोटा कल देखा था। तो इस सूत्र का जो अर्थ है वह यह है, कल के सूत्र को ही रिपीट कर रहा हूं जरा सा। दृष्टा मैं हूं, मैं दृष्टा, और दृश्य जो है वह चित्त, उसकी वृत्तियां, तो उनसे यह दृष्टा अलग है। ऐसा विवेक जब उदित होता है, उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था को कहा गया है विवेक ख्याति। ऐसी विवेक की अवस्था कि मैं दृष्टा, चित्त की जो वृत्तियां है या जो दृश्य उसके द्वारा निर्मित होता है या दृश्यमय है, उससे अलग हूं, इतना भर यदि होता है तो उस स्थिति को विवेक ख्याति ऐसा कहते हैं। थोड़े में हम लोगों ने यह ध्यान में रखना चाहिए। तो संशय, विपर्य, भ्रम आदि जो दोष विप्लव के रूप में, विप्लव का मतलब है बंगाल में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, विप्लव, विप्लवकारी, जो क्रांतिकारी होते थे वह विप्लवकारी वहां पर कहे गए। मतलब जिन्होंने कुछ नया लाने के लिए किसी से झगड़ा किया, परिस्थिति से झगड़ा किया या युद्ध किया, लड़ाई करी उस परिस्थिति को बदलने का, तो यह जो अंदर की अशांत जो स्थिति है, यह विप्लवकारी स्थिति है। यह कैसे? तो संशय, विपर्य, भ्रम, इन दोषों के कारण है। इन दोषों की जब वहां से समाप्ति हो जाती है तो अविप्लवा विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। पूर्णतः यह दोष या झगड़े की परिस्थिति या यह अंधाधुंध स्थिति जब नष्ट हो जाती है तो वह स्थिति विवेक ख्याति की है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी अविप्लवा विवेक ख्याति जब होती है तब वह हान का उपाय है, ऐसा समझना। हान का उपाय मतलब उस मोक्ष स्थिति का यह उपाय। कौन सा उपाय है? तो अविप्लवा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति क्या है? तो मैं दृष्टा, और यह जो दृश्य में चित्त है जो विभिन्न वृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, क्रिया रूप धारण कर रहा है, यह मैं नहीं हूँ, इसमें और मुझ में अंतर है, मैं अलग हूँ। बस इतनी बार बात उत्पन्न हो जाए तो उसे विवेक ख्याति ऐसा कहते हैं। और यह अविप्लवा विवेक ख्याति ही हान का अर्थात उस स्थिति तक पहुंचने का उपाय है, मार्ग है। साइंस, टेक्नोलॉजी, मेथड, प्रक्रिया, विज्ञान या विधा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बस इतना पर इसका जिस्ट था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यह जो सच्चिदानंद घन दृष्टा पुरुष, चित्त, उसकी वृत्तियां,
तन्मूलक सारा संस्कार, इससे तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ऐसा यह बताता है। और बाद में वह सद्गुरु के शरण जाता है और वे उसको बताते हैं कि श्रवण मनन आदि साधन मार्गों का वे उपदेश उसको करते हैं, साधक को, मुमुक्षु को, या जो योग मार्ग में जो व्यक्ति लीन हुआ है उसको वह बताते हैं। और साधक श्रवण मनन आदि के कारण सच्छास्त्र और सद्गुरु इनके उपदेश विषय तो बौद्धिक दृष्टि से वह बिल्कुल निस्संदेह हो जाता है और वह कैवल्य साक्षात्कारार्थ निर्विकल्प समाधि का आश्रय वह लेने लगता है। तो उसे कैवल्य साक्षात्कारार्थ निर्विकल्प समाधि का आश्रय वह करने से उस स्थिति का साक्षात अनुभव उसको होने लगता है। जब वह कैवल्य का अनुभव लेने लगता है सशास्त्र सद्गुरु इनके बताने के कारण, और उसे यह लगने लगता है कि वह नित्य है, वह शुद्ध है, वह बुद्ध है, मुक्त है, और उसके अंदर का अविद्या का पूर्णतः नाश हो गया और अविद्या के जो कार्य है उन कार्यों से भी उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ऐसी प्रतीति उसको आने लगती है। कभी कभी पूर्व संस्कारों के कारण कभी कभी कोई अंतराय आ जाता है तो संशय, विपर्य, भ्रम इत्यादि विप्लय उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, अंतराय उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उस निर्विकल्प समाधि के कारण उस समय पुनः उनका यदि आश्रय वह लेता है तो वह सारे विप्लव दूर हो जाकर वह समाहित अवस्था में ही रहता है और कभी कभी वित्थन अवस्था में भी जाता है, तो भी वह धीरे धीरे उसमें से बाहर आकर अंदर और बाहर सब दिशाओं से बिना प्रयास से वह अपने आप को यह मान कर चलता है कि वह नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। इस स्वरूप का वह अखंड स्फुरण उसको रहने लगता है। यही वास्तव में विवेक ख्याति है। जब यह अखंड स्मरण उसको होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अविप्लवा विवेक ख्याति होती है, और ऐसी विवेक ख्याति होने की यह जो चरम अवस्था है वही हान का उपाय है, क्योंकि उसी में उसके अंदर की जो अविद्या है उसका पूर्णतः नाश होता है और विद्या का वहाँ पर जन्म होता है, और अर्थात वह आत्मस्थिति, मोक्ष स्थिति या अपरावर्गता वहाँ पर उत्पन्न होती है। इस प्रकार निरंतर विवेक ख्याति जिस साधक को हो जाती है उसको हान यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई होती है, और इसी हानावस्था में ही फिर उसकी प्रज्ञा किस प्रकार की रहती है यह आगे के सूत्र में बताया है। आगे का सूत्र है 27वां। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? बहुत बढ़िया है यह सूत्र। जैसे हमने पहले भी वृत्तया पंचतया या चित्त की 4 स्थितियाँ, 5 स्थितियाँ, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त या फिर एकाग्र, निरुद्ध आदि हमने देखी, या क्लेश हमने देखे, या फिर प्रमाण, विपर्य, निद्रा, स्मृति आदि हमने देखी। तो उसी प्रकार यहाँ पर सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं, 7 भूमियां बताई गई है, उसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। अविप्लवा विवेक ख्याति यह सूत्र है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही, तो यह प्रज्ञा क्या है आगे बताते हैं। अविप्लवा विवेक ख्याति उदित जब हो जाती है तो वह जो हानावस्था है
अर्थात वह जो कैवल्यावस्था प्राप्त होती है, उस कैवल्य अवस्था में चित्त में प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वह प्रज्ञा की स्थिति है और उसमें 7 प्रकार की सहज प्रवृत्तियां, जिनमें प्रकर्ष से मतलब बड़े विशेष रूप से अंत तक पहुंची है, ऐसी वह सहज प्रवृत्तियां रहती है। उसे ध्यानावस्था में योगी के प्रज्ञा की 7 प्रकार की यह सहज प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है योगी के अंतर में, ध्यानावस्था में, ऐसा उसको कहा जाता है। लेकिन वह नाश उनका होना चाहिए उस स्थिति का भी, तब उसके अंदर वह जो प्रज्ञा की स्थिति है वह फिर कायम रहती है। तो ये 7 भूमिकाएं कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी देखेंगे। पहले प्रज्ञा और प्रज्ञा भूमि क्या है थोड़ा सा जानते हैं। प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में ही हमने देखा था कि चित्त की यह 5 स्थितियां होती है। कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ऐसी 5 अवस्थाएं चित्त की पहले ही हम देख चुके हैं। इसे पुनः यहाँ पर रिपीट करने का कोई कारण तो बनता नहीं है। यह भूमिका चित्त के जो व्यापार है भिन्न भिन्न, उनको अनुलक्ष्य करके वह बताए गए कि जो मूढ़ चित्त होता है, बहुत तामस गुण का वहां पर प्राबल्य होता है, तो क्षिप्त, विक्षिप्त आदि आदि, है ना। तो चित्त के जो व्यापार है वह चित्त के भीतर जो प्रेरणा है, प्रज्ञा है, उसके कारण होते हैं। उस प्रज्ञा के कारण ही चित्त के भीतर के व्यापार चलते हैं। तो प्रज्ञा यानी कौन? तो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान। हमने प्रमाण, अनुमान प्रमाण, विपर्यय प्रमाण, विकल्प प्रमाण आदि हम सब देख चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब जो देखा, साक्षात देखा, साक्षात अनुभव किया, चाहे हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों से चाहे कर्मेंद्रियों से, वह प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान। और आगम का मतलब है आप्त वाक्य, यानी शास्त्रों से, गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, विशेष पुरुषों से, या जो व्यक्ति साधनारत है, या हमारे परिचय के, या हमने जिनको ईश आदि कहा, वे, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर जो अनुमान प्रमाण के सहायता से जो धीरे धीरे विकास जिसका होता जाता है, ऐसी बुद्धि या उस बुद्धि की जो जानीव रूप का मतलब है उस बुद्धि की जो प्रत्यक्ष अनुभव करने की, प्रत्यक्ष समझ लेने की, प्रत्यक्ष समझ, वह जो शक्ति है वह प्रज्ञा कहलाती है। तो क्षिप्तादि भूमिकाओं में चित्त जब व्यापारवान रहता है, तब वह प्रज्ञा का विकास क्षम जानी जो होती है, समझ जो होती है, उसके सहायता से ही वह व्यापार युक्त होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के व्यापार या क्रियाएं वह करता है। इस प्रकार के चित्त को व्यापार युक्त करने वाली प्रज्ञा, यह 7 प्रकार की सहज प्रेरणा यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रेरणा के कारण ही प्रज्ञा चित्त को क्षिप्तादि भूमिका में व्यापृत करती है, मतलब उसी में उलझा के रखती है या उसी में संबद्ध वह करती है। कौन? तो यह जो प्रेरणाएं है, जो चित्त उस स्थिति में रहता है, क्षिप्त आदि स्थिति में, उसी में वह इस प्रज्ञा को भी लगाए रखता है या जोड़कर रखता है। तो सहज प्रेरणा 7 प्रकार की होती है। तो प्रज्ञा की जो भूमिकाएं हैं वह भी 7। तो यह जो प्रज्ञा है उसकी भी भूमि भी 7, भूमिका नहीं, भूमि, उसकी भूमिका मतलब उसके क्यों कहो कि 7 स्तर है। तो जिस पुरुष में
यह अविप्लवा विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, उदित होती है, उसमें यह प्रज्ञा सातों ही भूमिकाओं के अंत को प्रकर्ष से, मतलब विशेष रूप से वहां तक वह पहुंचती है। और इसलिए ऐसे प्रज्ञा को सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ऐसे इस सूत्र में कहा गया है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तो इस प्रज्ञा के जो विभिन्न रूप है वह थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं। कैसे होती है यह प्रज्ञा, या यह जिसको जाने हो, जिसको समझ, या अंत प्रज्ञा कहो, यह कैसी होती है। तो यह है तो चित्त का ही धर्म, लेकिन उस ज्ञान में कुछ प्रकर्ष विशेष रूप से जब वह दिखाई पड़ती है, तब वह प्रज्ञा या उसको प्रज्ञान ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है। तो श्रोत्र इंद्रियावर बाहर से, जैसे हमारे कान है, तो ध्वनि लहरी उस पर आकर टकराती है। जब वह टकराती है तो आवाज होता है, तो अपने को यह समझ में आता है और उसका ज्ञान होता है कि ध्वनि लहरी कान से टकराई है, तो उसका बोध भी होता है ना। तो इस प्रकार सामान्य ध्वनि ज्ञान हमें भी होता है, और जो नए नए जन्म लिए उन बच्चों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, पक्षियों को भी होता है। लेकिन इन सभी में या हमारा भी विशेष रूप से ध्यान नहीं रहा, तो हमें भी ऐसे अनेकों आवाजें निरंतर उत्पन्न होती रहती है, हमें उसका कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, वो सामान्य रह जाता है। तो वह सामान्य रहता है, और प्रकर्ष से, विशेष रूप से वह जानने योग्य उस ज्ञान का विकास नहीं हुआ रहता है। छोटा बालक है, आवाज तो हुई कान पर, लेकिन उसका क्या अर्थ है नहीं समझ में आया। पक्षियों के कान पर आवाज हुई, पशुओं के कान पर आवाज हुई, हमारा भी जब ध्यान नहीं रहता तो कान पर आवाज हुई, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे वो यंत्र होता है आवाज करने वाला, बीन, वह जब बजाई जाती है तो सांप, सर्प, जो नाग होता है वह डोलने लगता है, तो उसको कहते हैं नागसुर। नागसुरों का आवाज सुनकर नाग डोलने लगता है। लेकिन जो गधा है, जो गंदगी पर या कहीं पर जहाँ पर कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, वहाँ वह यदि खड़ा है तो उसको इस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज तो वो भी सुनता है, लेकिन जो नाग है वह बिन की आवाज सुनकर वह तो डोलने लगता है, और इसको तो केवल इतना ही लगता होगा कि कोई आवाज आ रही है। तो इस प्रकार यह बात घटित होती है, तो वहां प्रज्ञा नहीं है। तो आवाज की जो माधुरी है, मिठापन है, वह जो सुंदरता है, वह क्या चीज है, इसका विशेष ज्ञान उस नाग की जगह पर तो है। नाग को तो है, लेकिन उस नागसुरों का मीठा आवाज सुनने के कारण वह डोलने लगता है, लेकिन वही आवाज सुनकर वह गधा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। इस प्रकार जब कोई तार स्वर से बहुत चिल्लाता है और मधुर स्वरों की कमाल मर्यादा, तो जो गधे को किसी प्रकार ना उस माधुरी की, ना बहुत चिल्लाने की, या वो नागसुरों की, उसको किसी प्रकार की कोई भी अनुभूति या किसी प्रकार की कोई रिएक्शन, एक्शन वहाँ पर उसकी नहीं होती है। उसका भी, छोटे बच्चों का भी, पशु पक्षियों का भी, केवल कोई आवाज आई इतनी बार बात होती है। लेकिन आवाज तो मोर की षडज संवादिनी केका भी होती है, कोकिल का भी आवाज पंचम स्वर में होता है। कोई पक्षी शावक बहुत मीठी किलबिल किलबिल वह है ऐसा मात्र जानता है, लेकिन वह मधुर ध्वनि किसकी है उसको कोई पता नहीं पड़ता।
या कोई मनुष्य रोता है, उसका जो स्वर है आर्त स्वर है, या वह आनंद से रो रहा है, उल्लसित हो रहा है, किसी को कोई समझ में नहीं आता है, अन्य जो प्राणी है उनको। तो इस प्रकार उन आवाजों की पहचान उनको नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ज्ञान बुद्धि विकसित अवस्था में नहीं रहती है। वह जिस मनुष्य में वह विकसित होती है, तो यह जो प्रौढ़ावस्था है बुद्धि की, वह प्रौढ़ावस्था ही प्रज्ञा या विकसित बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, उसको ही प्रज्ञा ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार वस्तु मात्र की सामान्यता से जाने होना, ज्ञान होना, उस वस्तु के आश्रय से अनेक विषय प्रकर्ष से जानना, यह प्रज्ञा नहीं है। तो विशेष रूप से उसको जानने लग जाना, यह प्रज्ञा अथवा प्रज्ञान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान यानी केवल सामान्य सामान्य जानकारी इतना भर है, और प्रज्ञा यह विशेष ज्ञान है। तो ज्ञान और प्रज्ञान, इसमें यह विशेषता का अंतर है। सामान्य आवाज आती रही, विशेष आवाज, उसकी माधुरता, और उससे आनंदित हुए, तो यह प्रज्ञान। इस प्रकार का यह ज्ञान और प्रज्ञान, यह बात इसमें बनती है। तो ऐसा जीव का धीरे 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 विकास होता रहता है, और ऐसा विकास होता 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 उसके अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत होती है, उसके चित्त में ही ऐसी प्रेरणा वास करती है, और वह प्रेरणा फिर जागृत होकर व्यापार में वह प्रवृत्त होता है। और व्यापार में प्रवृत्त होता है मतलब क्या? वह धीरे धीरे वह साधना मार्ग में प्रवृत्त होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो यह जो 7 सहज प्रेरणाएं मनुष्य के चित्त में रहती है, वह कैसी, कौन सी यह हम देखते हैं। तो योग शास्त्रकार बताते हैं कि यह 7 प्रकार की प्रेरणाएं कौन सी है? तो प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, जिसको हम हिंदी में जिज्ञासा कहते हैं, मूल संस्कृत में जिज्ञासा, चिकीर्षा, शोक, भय और अतृप्ति, यह वह 7 सहज प्रेरणाएं है। फिर एक बार, योग शास्त्र के अनुसार, उनके मत से यह प्रेरणाएं 7 प्रकार के प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, चिकीर्षा, शोक, भय और अतृप्ति, यह है। यह 7 ही सहज प्रेरणा चित्त में प्रसुप्त अवस्था में रहती है। यह 7 प्रेरणाएं चित्त में प्रसुप्त अवस्था में रहती है। देखिए क्या क्या होता है चित्त में, पहले हम कितना सारा देख चुके हैं। मतलब वो वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टाः, फिर वो मूढ़, क्षिप्त विक्षिप्त, फिर एकाग्र, निरुद्ध, वह अवस्था, फिर पंचक्लेश हम सब देख चुके हैं। ये सारा कूड़ा करकट चित्त में भरा रहता है। ऐसे चित्त को शुद्ध करना बहुत पौरुष प्रयत्न की आवश्यकता है, बहुत बड़े विवेक की आवश्यकता है। तो उसको जब उद्बोधक सामग्री मिलती है, तो यह जो प्रेरणाएं हैं यह जागृत होती है, और जीव को देह और इंद्रियों के व्यापार में यह प्रवृत्त कर देती है। यह उद्बोधक सामग्री पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे यह प्राप्त होती है, यह उस ओर बह जाती है। अब इन 7 प्रेरणाओं का स्वरूप हम देखने का प्रयास करते हैं। कुछ तो भी अपने को प्राप्त होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, ऐसा लगना यह प्रेप्सा है। मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे ये पेन मिलना चाहिए, मुझे ऐसा घर रहने के लिए मिलना चाहिए, मुझे ये मोबाइल मिलना चाहिए, मुझे इस प्रकार की व्यवस्था मिलनी चाहिए, मुझे वो कपड़ा मिलना चाहिए।
यह प्रेप्सा है। मुझे चाहना है किसी बात की, कुछ तो भी मुझे प्राप्त होना चाहिए, या मुझे अच्छी स्थिति मिलनी चाहिए, मुझे वह साधना मार्ग के द्वारा वह स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। यह प्रेप्सा है। यह जो 7 प्रेरणाएं हैं उसमें से एक प्रेरणा, पहली प्रेरणा है प्रेप्सा। इससे उलट ठीक विरोधार्थी, अपने को जब दुख होता है अथवा जिस विषय के प्रति अप्रीति, द्वेष, उसके प्रति घृणा आदि लगने के कारण वह वस्तु अपने को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जब लगता है तो वह है जिहासा, ठीक प्रेरणा के विरोध में। मुझे यह दुख देने वाली हो सकती है, जब पहले मुझे दुख दिया था, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं होनी चाहिए, तो इसे कहा गया है जिहासा। पहली प्राप्ति हेतु प्रेप्सा, दूसरी उसके ठीक विरोध में जिहासा। और कुछ तो भी नया अपने को समझ में आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे और क्या नया, और क्या समझ में, और क्या बता सकते, और आपने क्या जाना। यह और जानने की जो वृत्ति है या ज्ञान लालसा जिसको हम कहते हैं, वह है जिज्ञासा या जिज्ञासा। तो प्रेप्सा प्राप्ति की इच्छा, इससे ठीक उलट जिहासा, और फिर नया कुछ, नूतन कुछ समझ में आना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसी ज्ञान लालसा, जिज्ञासा। फिर कुछ करो तो करते रहो, करने से ही कुछ होगा, तो करते रहो। इसे कहा गया चिकीर्षा। इस स्थिति को कहा गया चिकीर्षा। नित्य कुछ नया करने की या करते रहने की वृत्ति अंदर रहती है, उसको कहता है चिकीर्षा। लेकिन गतकालीन अनिष्ट बातों के कारण चित्त में खेद वृत्ति भी उत्पन्न हुई थी, दुख हुआ था, उसे कहा गया शोक। कुछ बातें ऐसी हुई थी या करी गई थी या पूर्व जन्म में भी हुई होगी कि जिसके कारण खेद वृत्ति उत्पन्न होती है, उसे कहा गया है शोक। हमने कौन सी देखी? पहले हमने देखी प्रेप्सा, फिर देखी जिहासा, फिर उसके बाद हमने देखी जिज्ञासा, फिर उसके बाद चिकीर्षा, और फिर हमने देखा शोक। आगामी काल में, आगे आने वाले काल में कोई संकट आएगा कि क्या, ऐसी अंदर से ही एक चिंता, दुश्चिंता निरंतर लगी रहती है, उसे कहा गया है भय। और कितना भी विषय सेवन किया तो भी उससे तृप्ति न होना, यह अतृप्ति। इस प्रकार 7 चीजें बताई गई है। प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, चिकीर्षा, शोक, भय और अतृप्ति। ऐसी चित्त की बहुत बारीकी से पतंजलि मुनि ने चिकित्सा की हुई है। वे कहते हैं कोई चीज मुझे मिलनी चाहिए ऐसा लगना प्रेप्सा, लेकिन यह चीज या मुझे जो प्राप्त हुआ है वह दुख दे सकता है, उससे दूर हटना, तो उससे दूर जाने के लिए यह चीज मुझे नहीं चाहिए। जिज्ञासा, मुझे कुछ नया समझ में आना चाहिए और कुछ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो ज्ञान की लालसा से जिज्ञासा, और कुछ तो करना चाहिए कि वृत्ति अंदर उठी चिकीर्षा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई या की गई अनिष्ट बातें कि जिसके कारण चित्त में उत्पन्न हुई खेद वृत्ति, शोक, और फिर आगामी काल में कोई संकट आ सकता है तो डर लगना, भय, और कितना भी विषय सेवन किया, कितनी ही मिठास से विषय के साथ जुड़े, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, अतृप्ति। इस प्रकार की 7 स्थितियां चित्त की उत्पन्न होती है, और यह बीज रूप में, प्रेरणा के रूप में अंदर रहती ही है। ऐसा शास्त्रकार
बताते हैं। तो जीव से जब जब देह और इंद्रियों के द्वारा जब जब व्यापार होते हैं, उनके मूल में इनमें से एक अथवा अधिक प्रेरणाएं काम करती है। प्रत्येक कोई भी चीज, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मैंने ये पेन यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रखा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अरे ये पेन यहाँ रहेगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए मैं उसको सुरक्षित जगह पर रखूं। है यह पेन यहाँ पर रखूंगा तो यह पेन धूप से सूख जाएगा, इसलिए इसको उठाकर यहाँ पर रखूं, तो इसके प्रति मेरी यह शोक की वृत्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के पीछे इनमें से कोई ना कोई एक अथवा अधिक वृत्तियां निरंतर ये प्रेरणाएं कार्यरत रहती है। तभी जीव, मनुष्य अथवा साधक यह कार्य प्रवण होता है, कार्य के लिए प्रवृत्त होता है। और इसका यदि सूक्ष्म निरीक्षण किया तो यह दिखाई पड़ता है कि यह जो प्रेरणा है यह दो भागों में बांटी जा सकती है। दो भागों में बांटी जा सकती है, वह देखते हैं। एक मूलभूत सहज प्रेरणा का भाव और दूसरा विशिष्ट विषय को व्याप्त होकर जो प्रेरणा का भाग ऐसा रहता है। यह दो बातें हम देख सकते हैं, एक मूलभूत और दूसरा किसी विशिष्ट विषय के लिए यह प्रेरणा जागृत होती है। एक उदाहरण लेते हैं जिसके द्वारा यह समझने का प्रयास करते हैं। मान लो गुलाब का फूल। अब गुलाब का फूल कहीं पर हमने देखा तो एक प्रेरणा होती है, बड़ी उपजत होती है, और वह गुलाब का फूल देखते ही हमें ऐसा लगता है कि वह गुलाब का फूल मैं तोड़ लूं, उसको मैं ले लूं। उसको तोड़ने के लिए मन उद्युक्त हो जाता है। तो मधुर सुवास के कारण मुझे आह्लाद होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन आनंदित होता है। तो इस सुगंध मिलना चाहिए, ऐसी प्रेक्षा वहां पर रहती है। तो सुगंध प्राप्त होना चाहिए, इस आंतरिक इच्छा के कारण वह फूल मैं तोड़ लूं, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। और यह स्वाभाविक है, सभी में होती है, सभी में होती है। ठीक, तो इसे प्रेक्षा हम कहेंगे। देखिए, यह उस प्रेरणा का यह प्राकृतिक स्थायी भाव है, प्रकृति ने दिया हुआ यह स्थायी भाव। यह कोई बहुत बड़ा दोष ऐसा नहीं माना गया है। लेकिन इस गुलाब के फूल के बारे में उसके प्रति जो आकर्षण है, यह वैकृतिक परिणामी भाव है। उस आकर्षण के कारण यह बड़ा अच्छा है, तब जाकर इसको तोड़ना, यह उस बात का यह दूसरा यह भाव है। और इस कारण ही वह स्थायी भाव है, वह प्रेक्षा के रूप में उसको तोड़ने का मन होता है। उसका मधुरता इंद्रिय के स्पर्श में, संपर्क में वह आ जाए और उससे आह्लादित हो जाए, उस कारण तोड़ने की इच्छा होती है। दूसरी, उसको देखा और उसके कारण बड़ा सुंदर है तो उसको ले लिया। इस प्रकार यह दूसरा भाव होता है। तो मीठे सुवास की तरफ यह जो हमारे वो जो खींचा जाता है, यह नैसर्गिक स्थिर भाव है। और यह प्रेक्षा हर समय उस प्रकार की रहती है। लेकिन उसका बाह्य उद्बोधक सामग्री कैसी है? तो बाह्य उद्बोधक सामग्री यह सुंदर है, तो इसको तोड़ लेना चाहिए। तो प्रेक्षा यह फूल के संबंध में रहती है। लेकिन यही प्रेक्षा मान लो जो मोगरे का फूल है, तो क्या मोगरे के फूल के लिए भी वैसी रहेगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यह प्रेक्षा जो वासना है, यह नित्य वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। तो यह दो भाग में यह दिखाई पड़ती है। एक नैसर्गिक, तो यह पापात्मकता और पुण्यात्मकता के रूप में भी यह कभी कभी दिखाई पड़ती है। तो प्रेक्षा का विषय धर्म और अधर्म के कारण दिखाई पड़ता है, और उसी के अनुसार यह पुण्यात्मक
वह पापात्मक वह हो जाती है। मतलब वह मैंने तोड़ लिया, या तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। यह इसका मीठा सुगंध सुवास आ रहा है, यहीं तक मैं रुकता हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन यह मेरे पोजीशन में होना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, यह सुंदर है, तो मैं ले लूँ। तो इसमें पापात्मक भाव भी आता है, और पुण्यात्मक भाव केवल उस सुगंध से आह्लादित हो जाना, यहाँ तक का भाव, यह पुण्यात्मक भाव उसका हो जाता है। इस प्रकार यह चलता है, और यह सातों फिर इसी प्रकार काम करती रहती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेप्सा, जिहासा, जिज्ञासा, चिकित्सा आदि जो वृत्तियां हैं, यह प्रकृति के अनुसार तो काम करती है, लेकिन इसमें नहीं फंसना है, और इसमें से धीरे धीरे निकलना है, और निकलकर धीरे धीरे शोक, भय, अतृप्ति, इन प्रवृत्तियों का भी अंत होना चाहिए। तब जाकर जो स्थिति बनती है वह जीवन मुक्त की स्थिति आती है, और इसे धीरे धीरे वह साधक उस जीवन मुक्त की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। उस जीवन मुक्त की अवस्था को अविद्या के द्वारा, और वहाँ तक पहुँचना, जीवन मुक्ति की अवस्था तक यह संभव होता है। इसी को विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है, और यह विवेक ख्याति होना ही यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार, क्योंकि इसका काफ़ी विश्लेषण दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, नारद जी उस घटना के माध्यम से वहाँ पर बोलते हैं, छांदोग्य उपनिषद में कथानक आया है कि नारद जी कहते हैं, वह अपनी शोक कथा स्वमुख से ही बताते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान सनत कुमार आदि मुनियों को बताते हैं, भगवान मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्वण वेद, और उसके वैसा ही इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, श्राद्धकल्प, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, देव विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़, संगीत इत्यादि सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। इस प्रकार मंत्र विदेवास्मि न त्वमेत सोहम भगवा शोचामि तम्मा भगवान शोकस्य पारम तारयतु। मैं केवल मंत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं। ऐसा मैं अनात्मवित्वा के कारण शोक कर रहा हूँ। ऐसा मुझे आप लोग इस शोक के पार मुझे तारिये लेकर चलिए। इस प्रकार नारद जी सनत कुमार आदि उनको वे कहते हैं, यदि नारद जी की यह स्थिति है तो हम और आपकी स्थिति कैसी होगी। तो साधक को निरंतर इस प्रकार से आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो भगवत गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसा निरंतर होता ही रहता है। तो इसमें से निकलकर आगे 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 बढ़ते 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 वह अंततः उस अवस्था तक जा सकता है। लेकिन इन सभी को प्रेरणा, अपेक्षा, जिज्ञासा, जिज्ञासा और चिकित्सा आदि, शोक, भय, अतृप्ति, सबको धीरे 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 पार करते हुए अविद्या मूलक यह वृत्तियों से आगे बढ़ते हुए अविद्या के नाश से फिर सर्वथा विमुक्त होकर विवेक ख्याति के द्वारा इन सबको चित्त से सर्वथा नष्ट करते हुए चित्त विमुक्ति की स्थिति में आगे बढ़ना है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यह विवेक ख्याति के द्वारा ही संभव हो सकता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तब जाकर शास्त्र आगे
28वें सूत्र में कहते हैं योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योग की यम नियम आदि जो 8 अंग कहे गए हैं उनका अनुष्ठान करने से चित्त में स्थित यह जो अशुद्धि है उनका क्षय होता जाता है और ज्ञान शक्ति प्रदीप्त होती जाती है और उसका पर्यवसान चित्त में विवेक ख्याति का उत्पन्न होने में होता है या विवेक ख्याति उत्पन्न होने में उसकी सहायता मिलती है या उनके द्वारा योगांगानुष्ठान यह यम नियम आदि 8 अंगों के अभ्यास से विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। ऐसा 28वें सूत्र में कहा गया है। इसको हम आगे चलकर देखेंगे। फिर आगे वह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अष्टावंगानी ऐसा 29वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। वहाँ से अष्टांग योग फिर आगे आरंभ होता है। आज यहीं पर हम लोग रुकते हैं। तो यह सप्तभूमि चित्त की जो अंतर्गत यह सारी 7 प्रकार की प्रेरणाएं हैं इनको हम अच्छे से समझ लें और अपने कृति पर, अपने बर्ताव पर, अपने सोच पर सभी तरह से कुर्मोंगानीव सर्वशा नियंत्रण प्राप्त करते हुए विवेक ख्याति की अवस्था की तरफ बढ़कर अष्टांग योग की सहायता लेकर उस विवेक ख्याति की स्थिति में अथवा प्रज्ञा की स्थिति में स्थित हो, इस प्रकार का मार्ग अर्थात भानोपाय का मार्ग पतंजलि महामुनि हमें देते हैं। उसको हम आगे चलकर जानेंगे। यही आज समाप्त करते हैं प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथम सत्र यही समाप्त होता है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ लेते हैं। आंखें बंद रखकर कंधे आदि ढीले ढाले रखकर चेहरा एकदम शांत, प्रसन्न बदन। प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि हमें चित्त की सप्त भूमियां, सप्त स्थितियां यह पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से समझ में आई, जानकारी में आई, तो हमारा चित्त कैसे कैसे काम करता है, कैसे उसके अंदर चाहना है, कैसे सुख की अभिप्सा है, कैसे दुख से दूर जाना है, कैसे नया नया ज्ञान और प्राप्त होना चाहिए ऐसा लगता है, कैसे जो चीज़ मिली थी वह सुख प्राप्ति की इच्छा निरंतर अंदर रहती है, जिसके कारण दुख उत्पन्न हुआ वह पुनः स्थिति न आए ऐसा लगता है, कैसे अंदर भय बना रहता है अथवा वह उस अवस्था की तरफ धीरे 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 जाता रहता है। यह सब अपने चित्त में, मन में कभी न कभी दिन भर के क्रियाकलापों में
जगाने का प्रयास करना चाहिए, तभी इस पर कुछ बंध लगेगा, इस पर कुछ रोक लगेगी और हम अपने आप के साथ कुछ क्षणों के लिए क्यों न हो रह पाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाए, निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। पुनः एक बार एकदम सजग होकर इस शास्त्र वचन को सुने। निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। निरंतर, ऑलवेज, हर समय आनंद रस से तृप्त हूँ, यह भाव अपने मन में सदैव रखिए। यह अत्यंत आनंद देने वाला वाक्य है। हो सके तो कभी इसे लिख लेना। निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। निरंतरानंद रसेन तृप्तः। बहुत अच्छा, बहुत मीठा यह शास्त्र वचन है। साक्षात अमृत झरता हुआ। निरंतरानंद रसेन तृप्तः। आत्मक्रीड, आत्मरति, आत्मतृप्त, ऐसी अवस्था बन जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। निरंतरानंद रसेन तृप्तः। मन में बसा लीजिए इस वाक्य को। निरंतरानंद रसेन तृप्तः। निरंतर आनंद रसेन, आनंद रस से तृप्तः, तृप्त हूँ।
ओम शांति शांति शांति।